Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about protein for class first year biology. Now first we discuss about the learning objective. We want to understand the structure of protein and also discuss the general structure of amino acid, the linkage that is peptide bond, and also discuss about their structure conformations. Now first, what is protein? Protein can be defined as it is the polymers of amino acid or polypeptide chain. When amino acids combine together and they form a long chain, then this is considered as a polypeptide chain because the bondage between them is polypeptide bond. In all proteins, it consists of carbon, hydrogen and oxygen and nitrogen atom, while some proteins also contain sulfur and phosphorus, and very few proteins consider the iron, iodine and magnesium ion. About their importance, they are the main structure component of the cell. In our body, the total dry mass, that is about 50%, are made up of protein. That's why they are the structural component of the cell. Now we consider the general structure of amino acid. The amino acid basically the building blocks of protein. There are many amino acids, different kinds of amino acids present, but only 20 kinds of amino acids are found in proteins. Now we consider the general formula or general structure of amino acid, that is it consists one side, that is N-terminal site, in which amino group is present, and the another side it consists C-terminal site, where it consists the carboxylic group, and this carbon basically central carbon which is bonded by other atoms, they are considered as alpha carbon, which has bond with the side chain which is shown by R. It represents that if it is changed by any functional group, then the amino acid will be changed, the structure of the amino acid will be changed. So this alpha carbon consider the variable function group on side chain and which is responsible for making the different amino acids, and this is the alpha carbon, and this hydrogen basically fulfill the कार्बन एटम. ये जो कार्बन है ये बेसिकली एक जगह एक जो है बॉन्ड है कार्बोक्सिलिक साइड से, जिसे आप सी टर्मिनल बोलेंगे, एक साइड से ये जो है बॉन्ड है अमाइनो ग्रुप से, जिसे आप एन टर्मिनल बोलेंगे. और ये आपने याद रखना है, ये जो अल्फा कार्बन है इधर जो साइड चेन मौजूद है, साइड चेन पे जो अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज होते जाएंगे तो डिफरेंट वो अमाइनो एसिड्स बनती जाएंगी, और इस तरह हमारे पास डिफरेंट जो है ना अमाइनो एसिड प्रेजेंट है प्रोटीन्स के अंदर. अगर हम इसके एग्जांपल कंसीडर करें तो अगर हम देखते हैं इधर साइड चेन पे अगर हमारे पास H लग जाए सिंपल, तो हमारे पास जो अमाइनो एसिड बन जाएगी वो ग्लाइसिन बन जाएगी. अगर इधर साइड चेन पे हमारे पास CH3 लग जाए तो हमारे पास जो चेन आएगी वो हमारे पास कौन सी बन जाएगी, जो नई अमाइनो एसिड बनेगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, एलानीन बन जाएगी. तो ये तो किसके बारे में था कि जनरल स्ट्रक्चर था अमाइनो एसिड का, कि जनरल स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड के में दो तरह की आपके पास ग्रुप्स प्रेजेंट है, एक को आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हो और एक को अमाइनो ग्रुप बोलते हो. और ये अल्फा कार्बन के साथ क्या होती है, अटैच्ड होती है. ये हाइड्रोजन बेसिकली क्या है कि ये जो कार्बन की बॉन्डिंग है, जो उसकी वैलेंसी उसको फुलफिल कर देती है, उसकी बॉन्डिंग को फुलफिल करती है. और ये जो आर है ये साइड चेन है, ये बेसिकली इसको डिफरेंट वेरिएबल फंक्शनल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है. जैसे जैसे आपके फंक्शनल ग्रुप या साइड चेन चेंज होगी वैसे वैसे अमीनो एसिड्स के जो हैं वो चेंज होती जाएंगी. और उसकी एग्जांपल हमने देखी कि अगर हम H लगा देते हैं
फंक्शनल ग्रुप H लगा देते हैं तो हमारे पास ये ग्लाइसिन बन जाएगी, और अगर हम CH3 लगा देते हैं तो हमारे पास जो अमीनो एसिड है वो एलेनिन बन जाएगी। फिर इसके बाद जो इनके दरमियान बॉन्डिंग होती है उसे हम जो बॉन्डिंग होगी उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। और ये कैसे फॉर्म होती है, अब ये देखें, ये साइड चेन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये डिफरेंट ग्रुप के दरमियान बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो अगर एक अमीनो एसिड हमारे पास ये है, दूसरे अमीनो एसिड हमारे पास ये मौजूद है, क्या होता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जो C टर्मिनल है वहाँ से वाटर और यहाँ से H आपस में क्या करेगा, बॉन्ड करेगा, वाटर रिमूव हो जाएगा और जिसकी मदद से C डबल बॉन्ड ONH बॉन्ड बनेगा, जिसे आप क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। और आपके पास क्या दो अमीनो एसिड अटैच हो रही हैं, इससे हमें पता चला कि हमारे पास डाईपेप्टाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमें ये शो कर रहे हैं कि कैसे हम डाईपेप्टाइड बना सकते हैं और इनके दरमियान जो लिंकेज होती है वो कौन था, डाईपेप्टाइड के बारे में, कि हम कैसे इनको जो है इनको अटैच या इनके दरमियान कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट है और ये कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं। तो आपने याद रखना कि जिस अमीनो ग्रुप वाला जो है वो N टर्मिनल बोलते हैं, जहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसे हम C टर्मिनल बोलेंगे, और C टर्मिनल और N टर्मिनल के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। और कैसे बनता है, वो वाटर के रिमूवल, जैसी वाटर के रिमूवल होगी OH और हाइड्रोजन आपस में जब वाटर बनाएंगे और ये रिमूव होगा तो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनेगा, जिसे आप पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। ट्राईपेप्टाइड की बात करें तो ये देखें, एक ग्लाइसिन जो है दूसरी ग्लाइसिन के साथ और फिर इसी तरह दूसरी ग्लाइसिन तीसरी ग्लाइसिन के साथ अटैच्ड है। तो ये देखें आपका C टर्मिनल N टर्मिनल के साथ अटैच है, इधर C टर्मिनल N टर्मिनल के साथ अटैच्ड है। तो इस तरह क्या होता है, ये आगे फर्दर भी ऑन हमारे साथ अटैच हो सकती है। अगर आपके पास 3 अमीनो एसिड्स अटैच्ड हैं, इधर हमने 3 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं, तो ग्लाइसिन अमीनो एसिड्स ले लिए हैं, तो एक ग्लाइसिन दूसरी ग्लाइसिन तीसरी ग्लाइसिन, तो ये आपस में अटैच हुई तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना वो ट्राईपेप्टाइड बन जाएगा। और अगर फर्दर हम देखें, हमारे पास मुख्तलिफ अमीनो एसिड्स आपस में विद द हेल्प ऑफ जो है पेप्टाइड बॉन्ड बन जाए और मुख्तलिफ क्या है बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड्स आपस में अटैच हो जाएं, तो ये देखें ये स्ट्रक्चर जा रही है, सारी अमीनो एसिड्स आपस में अटैच होती जा रही हैं। तो ये देखें, ये एक साइड पे N टर्मिनल है, एक साइड पे C टर्मिनल है, तो इसका मतलब है इधर से ये N टर्मिनल इसका फ्री है, वहाँ से आपके पास यहाँ पे आपके पास C टर्मिनल पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो फ्री है। तो ये भी क्या, ये फर्दर भी क्या जो है अमीनो एसिड को ऐड कर सकते हैं। तो इससे ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा ये आपको पॉलीपेप्टाइड जो है स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी, जो आप क्या बन जाएगी, प्रोटीन, जिसको हम प्रोटीन कहते हैं, कि एक जो लॉन्ग चेन बन जाती है जो पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड होती है, जिसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, वो आपकी बेसिकली प्रोटीन बन जाएगी। तो ये पॉलीपेप्टाइड है, और ये पॉलीपेप्टाइड कैसे बनेगा, ये भी पेप्टाइड लिंकेज से बनेगा। इसमें क्या होता है कि इसमें जो अमीनो एसिड्स हैं उनमें काफ़ी सेवरल अमीनो एसिड्स आपस में लिंक टुगेदर करती हैं, और जिसकी वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। और ये किसको शो करती है, प्रोटीन को शो करेगी और प्रोटीन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसके बाद हम स्ट्रक्चर कन्फर्मेशन की बात करें तो हमारे पास प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर आते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर आपने हमेशा याद रखना है, जो लीनियर स्ट्रक्चर आता है, अमीनो एसिड्स जो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से अटैच्ड हुई हैं और लीनियर स्ट्रक्चर जो बन गया उसको आप क्या कहेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या हो, फर्दर जो है लोकल फोल्डिंग क्या, इनमें फोल्डिंग बन जाए ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनमें फोल्डिंग्स बन जाए, तो 2 तरह की फोल्डिंग्स इसमें बन सकती हैं। एक तो ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका हेलिकल स्ट्रक्चर में, जिसे हम अल्फ़ा हेलिक्स कहते हैं, या वो बीटा प्लेटेड शीट जो है वो बन जाती है। और इनके दरमियान जो है ये क्या फोल्डिंग हुई है, तो एक तो इनमें के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो है रिस्पॉन्सिबल है, और इसके में जो है आपस में फर्दर जो है वो इंट्रैक्शंस की वजह से क्या हुआ है कि ये जो किस्मों में तब्दील हो जाती हैं आपके पास, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाएंगी, जिसमें आपके पास ये क्या है, बीटा प्लेटेड शीट और अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा। और अगेन जैसे ही इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रैक्शन ज़्यादा होती जाएंगी तो ये
या तो बीटा प्लेटेड शीट्स बना देंगी या अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर बना देंगी। फिर इसके बाद अगर क्या हो कि इनके दरमियान जो चेन इंट्रैक्शन है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, तो ये देखिए फॉल्ट्स तो पैदा हुए, लेकिन और फर्दर इनके दरमियान में इंट्रैक्शन हो जाए, अमीनो एसिड्स के दरमियान में वो फर्दर इंट्रैक्शन, चेन इंट्रैक्शंस हो जाएँ, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये टर्शियरी स्ट्रक्चर ग्लोबुलर शेप में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम टर्शियरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो जो टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो आपके पास जो फर्दर फोल्डिंग हो रही है, जो चेन इंट्रैक्शन हो रही है, इसमें जो बॉन्डिंग इन्वॉल्व है वो आयनिक बॉन्डिंग है और साथ साथ डाइसल्फाइड बॉन्डिंग इसमें इन्वॉल्व होती है, जिसे हम डाइसल्फाइड ब्रिज कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्दर इसी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अगर क्या हो, इन पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर फर्दर क्या हो जाए, बॉन्डिंग हो और फर्दर इंट्रैक्शन की जो हो, चेन्स की अट्रैक्शन हो जाए और ये क्या है ग्लोबुलर शेप में तब्दील हो जाए, ये आपके पास जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसे हम टर्शियरी स्ट्रक्चर कहेंगे। और जो टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो बॉन्डिंग इन्वॉल्व है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा वो आयनिक बॉन्डिंग है और डाइसल्फाइड ब्रिज है। तो ये आपके पास जो ग्लोबुलर शेप का जो स्ट्रक्चर बना है इसे हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। लेकिन अगर अब क्या होता है, अगर फर्दर क्या हुआ, ये एक टर्शियरी स्ट्रक्चर है, फिर दूसरा टर्शियरी स्ट्रक्चर भी आ जाए, एक चेन दूसरी चेन आपस में क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए। ये एक चेन है जो आपको लाइट कलर में नज़र आ रही है और ये एक आपको डार्क कलर में नज़र आ रही है। दो चेनें आपस में क्या हो जाए, अट्रैक्ट करें और वो क्या करें, पेयरिंग कर लें, बॉन्डिंग उनके दरमियान हो जाए, तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और ये जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है और जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनता है, ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, या हम इसे कहते हैं क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो ये तो था कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसे प्रेजेंट है। तो आपने ये बात याद रखनी कि आपके पास जब लीनियर फॉर्मेशन हो रही है, लीनियर स्ट्रक्चर बन रहा है, अमीनो एसिड कंबाइन हो रही है और लीनियर स्ट्रक्चर बन रहा है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। उसी प्राइमरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फोल्डिंग्स पैदा हो रही हैं और जिसकी वजह से अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट बन रही हैं। तो इसको ये भी हमारे पास एक ही चेन के अंदर क्या हो रही है, प्राइमरी स्ट्रक्चर से ये किस पे जा रहा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर से क्या होता है कि ये दोनों आपस में क्या कर जाती हैं, इंटरेक्ट कर जाती हैं ड्यू टू आयनिक बॉन्डिंग एंड डाइसल्फाइड ब्रिज, तो इट कन्वर्ट्स इनटू टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो जब ये टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाता है, अब एक टर्शियरी स्ट्रक्चर बना आपका पॉलीपेप्टाइड चेन का, फिर दूसरा जो कहें जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है, अब मुख्तलिफ टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में कंबाइन कर लें, मुख्तलिफ टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आपस में कंबाइन कर लें, तो आपके पास जो नया स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर या क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर करते हैं, जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा टर्शियरी जो स्ट्रक्चर्स वाली प्रोटीन है वो आपस में कंबाइन हो जाती हैं, बॉन्डिंग कर लेती हैं और उससे जो नया स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर बोलेंगे। और इसके अंदर जो इंट्रैक्शन होती है, फर्दर जो इनकी इंट्रैक्शन हो रही है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन हुई है, जिसकी वजह से ये आपस में इंट्रैक्ट कर रही हैं। तो ये तो था स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन के बारे में। फर्दर हम देख लेते हैं, ये देखें जो लीनियर चेन बन रही है वो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है। यह है देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से या तो आपस में ये क्या बना लेंगी, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बना लेंगी, या ये चेन्स क्या कर लेंगी, बीटा प्लेटेड शीट क्या बना लेंगी। ये देखें ये आपके पास जो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है इसे जो ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये आपका बेसिकली क्या कहलाता है, बीटा प्लेटेड शीट कहलाती है। तो या तो बीटा प्लेटेड शीट बन जाएगी या अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगा। और ये दोनों अगर शीट्स आपस में कंबाइन हो जाए, इनके दरमियान अगर इंट्रैक्शन हो जाए, फर्दर फोल्डिंग हो जाए ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू आयनिक बॉन्डिंग एंड डाइसल्फाइड ब्रिज इनके दरमियान बन जाए, तो यही फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये स्ट्रक्चर फर्दर टर्शियरी स्ट्रक्चर पे कन्वर्ट हो जाएगा। और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स जो है, टर्शियरी स्ट्रक्चर डिफरेंट टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आपस में कंबाइन करें, मतलब एक टर्शियरी स्ट्रक्चर एक जो बना है, इसी तरह दूसरा टर्शियरी स्ट्रक्चर जो बना होगा, मुख्तलिफ टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आपस में कंबाइन करते हैं और उसकी वजह से आपके पास जो नया स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहेंगे। तो ये तो था आपके पास
कंफर्मेशन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और आज हमने देखा कि प्रोटीन जो है उसका जनरल स्ट्रक्चर हमने देखा है कि किसका जो है वो किसका बना हुआ है। हमने जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड के बारे में डिस्कस किया, साथ साथ हमने उसके बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस किया कि कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने उसके स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन के बारे में पढ़ा कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह प्रेजेंट होगा। तो ये तो था प्रोटीन के बारे में। नेक्स्ट टाइम हम इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।